الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام اسٹیج پر جلوہ افروز مہمانان نظام، میرے بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت اہم کام کے لیے جمع کیا ہے. بہت خوشی کا موقع ہے. کہ جس دور سے میرا اور آپ کا گزر ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ابھی حالات، جو پریشانیاں ہیں، لوگ بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور اس وقت میں ایک ہاسپٹل کا شروع ہو جانا، جس کا مقصد ہے خدمت خلق، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق پریشان حال ہے، چاہے جس مذہب سے بھی تعلق رکھتی ہو، اس کو فائدہ پہنچے، اس کا علاج ہو، اس کو راحت پہنچے، اس کوشش کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما دے. میں نے شروع ہی میں روایت پڑھی کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع دینے والا ہو. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف مسلمان کو نفع دینے والا ہو. خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع دینے والا ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان، اگر اس کو نفع بخش جو انسان ہے، خیر الناس، اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ لوگوں میں سب سے زیادہ فائدہ مند انسان ہے، سب سے زیادہ بہتر انسان ہے. اور آج جس دور سے گزر رہا ہے، معاف کرنا، ہر انسان خود غرض ہو چکا ہے. ضرورت سب سے زیادہ جس دور میں خدمت خلق کی ہے. ہم میں سے ہر ایک بیٹھنے والا اگر یہ داعیہ رکھے گا، اگر یہ ارادہ کرے گا کہ میں اللہ کے مخلوق کی خدمت کے لیے اپنی جان مال کو قربان کر دوں گا، تو آج ایسے لوگوں کی جس دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، آپ تو سب کو رزق دینے والا ہے، آپ تو سب کو پانی پلانے والے ہیں. فرمایا کہ موسیٰ، میں پیاسا تھا، مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا، میری عیادت نہیں فرمائی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، آپ بیمار، آپ تو سب کو شفا دینے والے. فرمایا میرا ایک بندہ بیمار تھا، میرا ایک بندہ پریشان تھا. موسیٰ، اگر تم اس کی عیادت کے لیے آ جاتے، تم اس کی بیمار پرسی کے لیے آ جاتے، تم اس کی بیماری کو مدد کرنے میں کچھ تعاون کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، تم مجھے وہاں پاتے
یعنی انسان عبادات سے جنت کما سکتا ہے لیکن مخلوق کی خدمت سے اللہ کو پا سکتا ہے۔ آج سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کا، محبت کا، رحم کا معاملہ کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق تو اللہ کا کنبہ ہے۔ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پیدا کیے ہوئے مخلوق، چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، اس کے ساتھ شفقت کرنے والا، اس کے ساتھ محبت کرنے والا اللہ کو بہت زیادہ چاہیتا ہے، بہت زیادہ پیارا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں روایتوں میں بھی آتا ہے کہ جو اللہ کی ادنا مخلوق کے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ کرتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک عورت فاحشہ تھی جو غلط کام کرانے والی تھی، جو اپنی زندگی کو دوسرے کو، اپنے بدن کو دوسرے کو سپرد کرنے والی ایک فاحشہ عورت ہے۔ لیکن وہی فاحشہ عورت جب واپس آ رہی ہے اور ایک جگہ کے پر دیکھا اس نے کہ ایک کتے کا بچہ پیاسا ہے جو پیاس کی بنیاد پر اپنی زبان کو زمین پر گھسیٹ رہا ہے، اس فاحشہ عورت کے دل میں ایک مخلوق پر رحم آ گیا۔ اس نے اپنا موزہ نکالا اور اس نے اپنا دوپٹہ نکالا، اس سے پانی نکالا کنویں کے اندر سے اور اس پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ مالک کو اتنا رحم آیا، ایک فاحشہ عورت ہے لیکن اس مخلوق کے ساتھ شفقت کرنے کی بنیاد پر اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا زمانے کا محدث، کتاب لکھنے والا، سبق پڑھانے والا، درس و تدریس دینے والا، واعظ و نصیحت کرنے والا، لیکن اللہ کے سامنے جب موت کے بعد پیشی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد پوچھا کہ تو کیا لے کر آیا؟ میں نے تیری مغفرت فرما دی، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو فرماتا ہے کہ شاید میرے درس و تدریس کی بنیاد پر، میری واعظ و نصیحت کی بنیاد پر، میری کتابوں کی تصنیف کی بنیاد پر اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندے، تیرا ایک عمل میرے پاس وہ ہے جس عمل کی بنیاد پر تیرے مغفرت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ تم کتاب لکھ رہے تھے اور اس زمانے کے اندر جو قلم ہوا کرتے تھے وہ لکڑیوں کے قلم ہوتے تھے۔ فرمایا تم روشنائی میں ڈال کر لکڑی کو قلم لکھتے تھے، ایک مکھی آ گئی، اس روشنائی کو پینے لگی، تمہیں رحم آ گیا اس مکھی پر، اللہ کی مخلوق پیاسی ہے، یہ روشنائی پینے آئی ہے، تم نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی قلم کو روک دیا تھا۔ فرمایا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا، اس عمل کی بنیاد پر میں نے تمہارے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ یہ مخلوق کے ساتھ شفقت جو آج سب سے زیادہ جس کی کمی ہے، ہم سب کو ضرورت ہے اس دائیے کو لے کر یہاں سے جائے کہ ہم اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ، یہ تمہیں جانوروں کے ساتھ اس سلوک پر بنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے آدمی، آپ سب نے نام سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے وہاں پیشی ہوئی، فرمایا غزالی کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا نماز روزے میں تو کمی ہوگی۔ فرمایا کہ اللہ توحید لے کر آیا ہو، تیرے علاوہ کسی کو رب نہیں مانا تھا۔ فرمایا غزالی ایک رات کا واقعہ تم بھول گئے، تم نے دودھ پیا تھا، پیٹ میں درد ہوا تھا اور تم نے یوں کہا تھا کہ میرے پیٹ میں درد دودھ پینے کی بنیاد پر ہوا۔ فرمایا توحید تمہاری کہاں گئی تھی؟ لیکن ایک عمل تمہارا ہمارے پاس ہے، ٹھنڈی کا موسم تھا اور اس ٹھنڈیوں کے موسم کے اندر تم نے ایک بلی جو ہے ٹھنڈی کی بنیاد پر تڑپ رہی تھی، اس بلی کو تم نے اپنا کمبل، اپنی چادر اس بلی پر ڈال دیا تھا اور اس بلی کو راحت پہنچائی تھی، جس نے میری مخلوق کو راحت پہنچائی۔ آج میں تمہارے لیے راحت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ ہمیں ضرورت ہے اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ محبت کا، چاہے انسان ہو چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ہم انسانیت کو نہ بھولیں۔ ہم سب بیٹھ کر یہاں انسانیت کو سیکھنے آئے ہیں، چاہے مسلم ہو چاہے ہندو ہو چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو، انسانیت کے اعتبار سے کسی مذہب کا تعلق رکھنے والا اگر میرا مسلمان بھائی بھوکا ہے میں اس کی فکر کروں گا، میرا ہندو بھائی بھوکا ہے میں اس کے گھر پر جا کر اس کی بھی فکر کروں گا،
मेरा मुसलमान भाई बीमार है, मैं उसकी इयादत करके उसकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करूंगा। मेरा हिंदू या सिख और ईसाई भाई बीमार है, मेरा दिल इंसानियत का तकाजा है, मैं उसकी भी फिक्र करूं, मैं इसको भी लेकर चलूं। आज इंसानियत को सीखने की हम सबको जरूरत है। अल्लाह की कोई भी मखलूक हो, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, हमें जरूरत है कि हम तमाम के साथ हुस्न सलूक का मामला करें, मोहब्बतों का मामला करें। और भाई खिदमत खल्क का दाइया लेकर उठे। आज हमारी जो हॉस्पिटल है, बड़ी बड़ी इमारतें आप देखो कि बंद पड़ी हुई है, बड़ी बड़ी इमारतें कोई काम की नहीं है। बुनियादी वजह यह है खिदमत खल्क का जो जज्बा और दाइया है वो हम लोगों के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता निकलता हुआ जा रहा है। इंसान तो खुद गर्ज बन चुका, तो अपनी शक्ल लेकर चल रहा है। तेरी इंसानियत का तकाजा तो ये था, तो हर अल्लाह के हर मखलूक की खिदमत करता। मेरे और आप क्या का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को तुमने नहीं पढ़ा, मेरे और आप क्या का मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत खल्क को तुमने नहीं पढ़ा। मेरे आका जिस वक्त नबूवत नहीं मिली थी, लेकिन आप सोसाइटी की खिदमत करते थे, आप गरीबों की खिदमत करते थे, जब आपको नबूवत भी नहीं मिली। एक मरतबा नबूवत से कबल मेरे आका गुजर रहे थे और एक हबशी गुलाम को देखा। हालांकि आप मक्का के एक बड़े शरीफ खानदान के इंसान, लेकिन एक हबशी गुलाम को देखा। भाई तू रो रहा है। फरमाया मेरा आका बहुत जालिम है। फरमाया मैं इतने कगर गेहूं जो है वो रात तक नहीं पीसूंगा, मेरा आका मुझे बहुत पिटाई करेगा। मेरे आका ने फरमाया तू हट जा इस तरफ से। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, अभी आपको नबूवत नहीं मिली, लेकिन खिदमत खल्क का वो जज्बा था, आपने हटा दिया और फरमाया मैं तेरी खिदमत करूंगा। और आपने रात तक जितने गेहूं पीसने थे इसको पीस लिए, हालांकि एक हबशी गुलाम था। हमें जरूरत है कि हम मखलूक की खिदमत का, आपने नहीं देखा एक बुढ़िया जा रही है और एक बुढ़िया को देखा कि सामान उठाकर जा रही है। फरमाया अम्मा आप कहाँ जा रही है? फरमाया मैं सामान उठाकर मैं मदीने से बाहर जाना चाहती हूँ, मक्के से बाहर जाना चाहती हूँ। अम्मा आप तो बुढ़िया है और आपने इतना ज्यादा सामान उठाया है, मैं आपका सामान उठा लूं? फरमाया बेटे तू भी यहाँ बचना, एक मोहम्मद नामी इंसान है, कहीं उसकी बातों में ना आना, उसकी बातों में जादू है। ये बुढ़िया मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुराई कर रही है, लेकिन आप इस बुढ़िया का सामान सर पर लाकर जा रहे। मक्के से बाहर गए और मक्के से बाहर जाने के बाद जब इस सामान को रखा तो वापस आते हुए देखा, बेटे तेरा नाम तो बता, मेरे बेटों ने कभी मेरी इतनी खिदमत नहीं की, आज तो एक पढ़ाया होकर मेरा सामान इतनी दूर तक उठाकर लाया है। अम्मा मैं वही मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे रास्ते में, पूरे रास्ते में जिसकी तुम बुराइयां कर रहे थे, जिसके बाद में तुम बुरा भला कहते थे। उस अम्मा की जबान से निकला, बेटा तेरा चेहरा देखकर नहीं लगता कि तू झूठा हो सकता है, तेरा चेहरा तो सच्चे इंसानों का लग रहा है। तो ये खिदमत खल्क का जज्बा, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हम सबको ये तालीम दी, मखलूक की खिदमत का दाइया और जज्बा हम सब के अंदर रखे। आज हम समझते नमाज पढ़ने से, रोजा रखने से, हज करने से हमारी इबादत, हमारी इंसानियत और हमारा मामला खत्म हो गया, बल्कि उससे और एक कदम खिदमत खल्क का जज्बा हम सब के अंदर, इस दाइये को इस दौर में पैदा करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों हमें तो एक एक कदम के ऊपर तुम जिंदगी कैसे गुजारोगे, बल्कि एक आदमी बीमार हो गया, मेरे नबी ने फरमाया तुम उसकी इयादत के लिए जाओ। फरमाया सुबह में जाओगे शाम तक 70,000 फरिश्ते, शाम में जाओगे रात तक 70,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआएं करेंगे। फरमाया मुस्लिम शरीफ की रिवायत में आता है किसी बीमार की इयादत करोगे तुम, बीमार की इयादत के ऊपर हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में मुतअद्दिद अब्वाब जहाँ कायम किए, वहाँ एक बात मैं आपको खुल कर कह देना चाहता हूँ, इस्लाम कभी मजहब धर्मी, हद धर्मी कभी इस्लाम नहीं सिखाता। वहाँ इमाम बुखारी ने फरमाया मेरे आका जहाँ मुस्लिमों की इयादत करते थे वहाँ गैर मुस्लिमों की इयादत के लिए भी जाते थे। ये हमें सबक दिया जा रहा है। फरमाया कोई भी हमारा अड़ोस पड़ोस में रहने वाला, चाहे कोई भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, लेकिन हम उसके साथ मोहब्बत का मामला करें, उसने सलूक का मामला फरमाए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम अगर किसी के मकान पर जाओ, दुआ कला बासतहो इंशाअल्लाह, उसको तसल्ली की जुमले कहो। ये इयादत के हमें आदाब सिखाए हैं, तो हम इयादत करें, इस पर कितनी सवाब दिया जा रहा है। तो हमें जरूरत है कि हम किसी की सुख में, किसी
किसी के दुख में, किसी के अच्छे दिनों में जब शरीक होते हैं, किसी के बुरे दिनों में भी हम शरीक हो जाएं। हदीस पाक में आता है, मन कान फी हाजतिही कान अल्लाहु फी हाजतिही। जो अपने भाई की जरूरत में, गौर से सुने, जो अपने भाई की जरूरत में दौड़ेगा, चाहे बीमार है आप इसको हॉस्पिटल ले गए, चाहे बीमार है आपने उसका कुछ माली ताउन कर दिया, मन कान फी हाजती, मकरूज है आपने इसके कर्ज की अदायगी में साथ दे दिया, भूखा है आपने खाना खिला दिया, प्यासा है आपने पानी का इंतजाम कर दिया, मन कान फी हाजतिही कान अल्लाहु फी हाजतिही। फरमाया जब तक तो अपने भाई की जरूरत में रहता है, मन कान फी हाजती कान अल्लाहु फी हाजतिही, वहां तक अल्लाह तेरे काम पर लगा रहता है। तेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए अल्लाह आसमानों से निजाम बनाते हैं, जब तक तो अपने भाई की जरूरत को पूरी करने में रहता है। हमें ये सबक सीखने की जरूरत है, आज हमें इन चीजों को सीखने की जरूरत है। तो मैं अर्ज कर रहा था, मखलूक की खिदमत का अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, मैं कहता हूँ सिर्फ हम समझ ले सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ ली और मेरे रिश्तेदारों की खिदमत में मैं पीछे हूँ, बल्कि आमतौर पर ये जुमला हमारी जबान पर आता है, मेरा रिश्तेदार बीमार हो गया, मैं उसकी इयादत के लिए नहीं जाता, मेरा उससे ताल्लुक नहीं है। मेरे आका ने फरमाया सीला रहमी ये है जो ताल्लुक तोड़े इससे तुम छोड़ो। फरमाया जिससे तुम्हें नाराजगी है, अगर तुम इसकी इयादत के लिए जाओगे डबल सवाब मिलेगा, एक तो इयादत का सवाब मिलेगा, एक तुम उससे नाराज है, दिल पर बोझ रखकर तुम इसकी इयादत के लिए गए। भाइयों ये वक्त नहीं है भाई भाई बनकर रहे, एक दूसरे के ताउन करने वाले बने, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने वाले बने। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, चारों तरफ के हालात है, फिर भी इंसान हद कर्ज बनकर जिंदगी गुजार रहा है। हालांकि हम एक दूसरे को तकलीफों में साथ देने वाले बने, परेशानियों में साथ देने वाले बने। हमें जरूरत है, इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु एतिकाफ में बैठे हुए हैं, मेरे आका के चचा के बेटे चचाजाद भाई है, एक आदमी को टेंशन में देखा, इब्न अब्बास ने कहा तुम बहुत टेंशन में लग रहे। फरमाया हाँ, एक आदमी को हक मेरे ऊपर बाकी है, मुझे खतरा है, आपको सिफारिश कर दो तो शायद मेरा टेंशन दूर हो जाए। इब्न अब्बास एहतिकाफ में है, आप जानते हैं एहतिकाफ वाला आदमी मस्जिद से बाहर नहीं निकल सकता। इब्न अब्बास एहतिकाफ के जूते पहन रहे हैं, किसी ने कहा हजरत आप अपना एहतिकाफ भूल गए हैं। फरमाया मैं अपना एहतिकाफ नहीं भूला, मैंने इस कब्र वाले यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ इशारा करके कहा इस कब्र वाले से सुना है, कोई अपने भाई की जरूरत में, कोई अपने भाई की टेंशन में, कोई अपने भाई की परेशानी में, कोई अपने भाई के हालात में साथ देगा, वो 10 साल के एहतिकाफ से भी अफजल है, 10 साल के एहतिकाफ से अफजल है। क्या हम ये भूल चुके हैं खिदमत खल्क का जज्बा? हमें जरूरत है हम अपने आप को मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब कादलवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह की दादी के नाना होते हैं, एक मरतबा दिल्ली से कांधला जा रहे हैं, दिल्ली से कांधला जाते जाते रास्ते के अंदर एक बूढ़े मियाँ को देखा। फरमाया आप कहाँ जा रहे हैं? फरमाया मुजफ्फर हुसैन कादलवी करके बहुत बड़े वली है अल्लाह के, उसके बाद मैं जा रहा हूँ। दुड़िया बूढ़ी इस बूढ़े साहब को देखा, इसके ऊपर सर पर भी सामान है, हाथ पर भी सामान, हजरत खुद मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब है, लेकिन बताया नहीं कि मैं मुफ्ती उसे पर बड़ी मियाँ मैं आपका सामान उठा लूं? फरमाया हाँ उठा लो, मैं बहुत परेशान हूँ। सामान उठाते दिल्ली से कांधला चले, जब कांधला गए लोगों ने आपको देखा कि मुफ्ती साहब इतना सामान उठाकर दौड़े दौड़े लोग आए और उसके बाद हजरत का सामान ले लिया। तो उस बुढ़ी मियाँ ने कहा माफी हजरत, मैं तो आपकी मुलाकात के लिए आ रहा हूँ, पूरे रास्ते में सामान आपने आपका उठाया, माफ कर दे। फरमाया माफी की जरूरत नहीं, मुझे आपकी खिदमत का मौका मिल गया इस बहाने से। हमें जरूरत है, आखिरी बात मैं नकल कर दूं, आज सबसे ज्यादा हम परेशानी में, हमारी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है, बड़े बड़े ट्रस्ट जो काम करने चाहिए बात तो ये करनी लगेगी, लेकिन इसलिए ऐसे ही पड़े हुए हैं। हर आदमी चाहता है मैं मखदूम बन जाऊं, मैं सदर बन जाऊं, मैं सदर बन जाऊं। आज हमारे हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इंसानों सबसे ज्यादा आसान काम है कि आप खादिम बन जाओ, खादिम बन जाओ आप। हम चाहते हैं कि मैं एमएलए बन जाऊं, मैं सदर बन जाऊं, मैं फलानी जमात का अमीर बन जाऊं। हम सब ये, अब ये चीजें आपके इख्तियार में नहीं है। आप इलेक्शन जीतोगे तो अमीर बनोगे, आप इलेक्शन जीतोगे तो सदर बनोगे, ये आपके इख्तियार में नहीं है। और आप सदर बन भी गए, आप अमीर बन भी गए, आप एमएलए बन भी गए, तो भी आपके इख्तियार में नहीं, न मालूम कब आपकी कुर्सी चली जाएगी, कब आपकी कुर्सी चली जाए। इससे बेहतर ये है, आप चाहते हैं कि इज्जत के साथ जिंदगी गुजारे,
मखदूम बनने की, सदर बनने की जरूरत नहीं, खादिम बन जाओ। आप खादिम बन जाओ, ना आपके इख्तियार में कोई आपसे छीनना चाहेगा, कभी आपसे ये ओहदा कोई छीनेगा नहीं। जब आप खादिम बन जाओगे कोई आपसे ये ओहदा नहीं छीनेगा और आप हमेशा लोगों के खादिम बनोगे। और जो खादिम बनता है ऊपर वाला इसको मखदूम ही बनाता है। हमें जरूरत है इस बात की, मैंने जो रिवायत पढ़ी थी, इरहमु मन फिल अर्ज़, तुम जमीन वालों पर रहम करोगे, यरहमुकुम मन फिस समा, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। लेकिन हम जमीन वाले पर रहम करके अल्लाह, मखलूक जो है ये अल्लाह का कुंबा है, मखलूक अल्लाह का परिवार है, उसके लिए इंसान को जितनी चाहे कुर्बानी दे सकता हो इतनी कुर्बानी दे। बहुत जरूरत है, जैसे आज हमारी हॉस्पिटलें खुल रही है, जिसके लिए ये खिदमत खल्क के लिए, खिदमत खल्क के लिए, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया, ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। जाहिर सी बात है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया था, मैंने मखलूक को 3 नेमतें दी हैं, लेकिन 3 चीजों में मुकय्यद कर दिया, कैद कर दिया। एक तो इसको अनाज दिया खेतों से, लेकिन इसको मैंने कैद कर दिया है, इसको मैंने बंद कर दिया है कीड़ों से। फरमाया अनाज में कीड़े न लगते तो महंगाई इतनी बढ़ जाती, न खेदूत बेचने की किसान कोशिश करता, न व्यापारी बेचने की कोशिश करता, इसलिए लोग भूखे मर जाते। मैंने अनाज को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मैंने इसको कीड़ों में बंद कर दिया है, कीड़े लगते हैं तो लोग इसको स्टॉक नहीं करते, बेचता है व्यापारी भी, किसान भी बेचता है। दूसरी नेमत फरमाई, मैंने सेहत को बीमारी से कैद कर दिया है, बंद कर दिया। फरमाया कभी कोई बीमार न होता, फरमाया कभी कोई बीमार न होता। तो आज बड़े बड़े बहादुर लोग और पहलवान लोग अपनी अकरफू करते और अपना हाल भूल जाते, ये आपे से बाहर हो जाते। इसलिए बीमारी के साथ मैंने सेहत को घेरा ताकि ये आपे से बाहर न हो जाए, ये अपनी ताकत और पहलवानी की बुनियाद पर लोगों को पछाड़ने वाला न बने। और मैंने जिंदगी को मौत के साथ मुकय्यद कर दिया, अगर किसी की मौत ही न आती तो एक दूसरे को जिंदगी में जीना लोग हैरान कर देते, जीने के अंदर परेशानी में डाल देते। तो मालूम ये होता है बीमारी आ जाए, ये ऊपर वाले की तरफ से रहमत है, ये ऊपर वाले की तरफ से। जाहिर सी बात है कि कितने गुनाह माफ होते हैं, हमारे कितने गलतियां माफ हो रही है, ऊपर वाला हमारे कितने दर्जात बुलंद करता है। और इन बीमारियों की परेशानी के बाद अल्लाह कितनी नेमतें हमको देता है। लेकिन आज जरा कोरोना वायरस आ गया, आज जरा बीमारी आ गई, इंसान जबान से इतने नाशुक्रिया जुमला बोल रहा है, इतने नाशुक्री के जुमले जबान से बोल रहा है। भाइयों, नाशुक्री के जुमले हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा गुजर रहे थे, एक आदमी को देखा जिसकी आंख नहीं है, अंधा है, जबान नहीं है, गूंगा है, कान नहीं है, कान से सुनवाई नहीं है, पैरों से चल नहीं सकता, एक कोड़े करकट पे पड़ा हुआ है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों से पूछा, भाई इसके पास क्या नेमत है? फरमाया हजरत कोई नेमत ही कहाँ है, पैर से चल नहीं सकता, जबान से बोल नहीं सकता, आंखों से देख नहीं सकता, कान से सुन नहीं सकता है, इसके पास कौन सी नेमत है? फरमाया वो खाता तो है नहीं। फरमाया हाँ खा रहा है, वो खाने के जरिए से पाखाना और पेशाब कर सकता है। फरमाया हाँ ये भी बहुत बड़ी नेमत है, ये भी बहुत बड़ी नेमत है, वो खा भी रहा है, वो पेशाब पाखाना भी कर रहा है। फरमाया उसका सांस चल रहा है, कहाँ जिंदा है। फरमाया सबसे बड़ी नेमत इंसान तेरी इब्तिदा और इम्तिहान की, तेरे साथ चल रहे हैं, ये भी ऊपर वाले की बहुत बड़ी नेमत। फरमाया जिसकी बुनियाद पर तू जिंदगी गुजार रहा है। तो आज हमारे पास सारी नेमतें हैं, फिर भी हम नाशुक्रे हैं। जरा कोई बीमारी आ गई हम नाशुक्रे बन गए, जरा थोड़ी सी परेशानी आ गई नाशुक्रे बन गए, और सब कुछ होने के बाद भी हम नाशुक्रे। हजरत उमर ने उस आदमी के पास जब सारे आज़ा नहीं थे फिर भी कितनी नेमतें शुमार करवाई। हमें जरूरत है हम ऊपर वाले का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने बहुत नेमतों के साथ रखा है, कभी बीमारी आ गई, कभी परेशानी आ गई, ये रहमत है। लेकिन उसके लिए जैसे कि हॉस्पिटलों का इंतजाम है, हम सबको चाहिए हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में अगर कोई बीमार हो जाए इसकी इयादत करे, उसको तसल्ली के जुमले कहे। अगर वो माली एतबार से कमजोर है भाई कुछ ताउन कर लिया करे सब मिलकर, ताकि उसकी बीमारी का इलाज हो जाए, या तो उसको ऐसी ट्रस्ट के हॉस्पिटलों में भेज दिया जाए। लेकिन एक आखिरी जुमला नकल कर दूं, आज हमारे यहाँ ट्रस्ट जैसे कड़ी में है, मैं कड़ी की बात नहीं करता, बहुत सारी हॉस्पिटलों के निजाम में हूँ, वहाँ जाता हूँ। गाँव वाले अगर किसी जगह के हॉस्पिटल है वहाँ ये समझते हैं कि भाई हमारी गाँव की हॉस्पिटल, बहुत ज्यादा हंगामा होता है। यहाँ की बात नहीं करता और जगह के तजर्बात की बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा हंगामा।
हमारे गांव के हॉस्पिटल, हमारा हक बेहक नहीं, अतलाफ वालों का सबका हक है, बल्कि आप तो अंसार बने, आप करीब के हैं, आप जो आने वालों को जरा खिदमत का मौका दे। अभी एक हॉस्पिटल में जाना हुआ, थोड़ी देर में ठहरा, वहाँ जरा हंगामा हो गया और गाली गलौज चल रहा है। मैंने भाई क्या मामला हुआ? फरमाया इस गांव का आदमी है, वो कहता है कि हमारा हक बनता है, हम लाइन में नहीं खड़े रहेंगे। वहाँ क्यों लगी हुई थी और लाइन लगी हुई थी, तो फरमाया इसने कहा कि पहली दवाई मुझे दे दो। तो फिर फरमाया कि भाई सारे लोग खड़े हैं। फरमाया मैं इस गांव का हूँ, मैं लाइन में और क्यों मैं नहीं खड़ा रहूंगा। इस पर इतना हंगामा, इतनी गाली गलौज। लोगों, अल्लाह ताला ने ये नेमतें दी है, इसकी कदर करें, उसके साथ हम भी खैरखाना मामला करें, हम अपना माली ताउन उसके साथ पेश करें, हम अपना जानी ताउन उनके साथ पेश करें। इंशाअल्लाह ताला जो बातें मैंने कही, हम सभी जज्बे के साथ चलेंगे, एक दूसरे की खैरखाई करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत का मामला करेंगे। इंशाअल्लाह ताला सारी हॉस्पिटल, सारे ट्रस्ट अच्छे तरीके से चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला ऊपर वाला और कामयाबी की शक्लें पैदा करेगा। ये जो हॉस्पिटल माना वलीउल्लाह साहब ने बनाई, हजरत अल्लाह ताला हजरत को भी अपनी शान निशान बदला दे। हजरत जैसे हमारा माना हबीब साहब की जिम्मेदारी में सुपुर्द किया गया, मौलाना तो अल्लाह ताला ने इस काम के फहाल है। बस मैं तो बार बार यही नहीं कि मौलाना यहाँ है खुश करने के लिए कह रहा हूँ, हर दुआ में कहता हूँ अल्लाह ऐसे लोग जो है इनके उम्रों में बरकत अता फरमा। मैं रोजा दुआ करता हूँ कि अल्लाह ऐसे काम करने वाले लोग हैं, हम नुक्ता चीनियां इन पर न शुरू कर दे, हम छोटी छोटी बातों में अंगलियां न उठाए, दुआएं करें। ऐसे फ़आल लोग जितने भी हैं अल्लाह ताला इनके उम्रों में बरकत दे, इनके कामों में बरकत दे। अल्लाह इनके कामों में, वसाइल में, आसानियों में अल्लाह ताला और सहूलतें पैदा फरमाए। मौलाना हर फील्ड में जैसे आप जानते हैं, जिस फील्ड में आपको डाला जाए, कहीं हॉस्पिटलों में, स्कूलों में, मदारिस में, कहीं रिफाई कामों में, जगह जगह पर हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर गरीबों की शादियां कराना, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर गरीबों को खाना खिलाना, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, ये मौलाना के काम है। आप इतना काम कर रहे हैं कि घंटों तक शुमार करवाया जाए तो भी शायद कम पड़ेगा। अल्लाह बस दुआ करे, अल्लाह हजरत मौलाना और उनके साथ चलने वाले जैसे ईसा फाउंडेशन है, फातिमा वेलफेयर ट्रस्ट, जितने भी लोग हैं आपके साथ चलने वाले, आपका अल्लाह उनका भी ताउन करे, हजरत मौलाना को भी कबूल फरमाए। और जितने भी हमारे सरपंच साहब हैं, हमारे शफी भाई हैं, जितने भी लोग यहाँ मेहमान और भी लोग आए हैं, अल्लाह सबकी आमद को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला सबकी जमा होने को कबूल फरमाए। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।